You can do now, ma'am. हाँ जी, डन, थैंक यू। Yes, we were here on this page. So right now in our syllabus, only this perfect competition is there. These are deleted, but I will tell their meanings also. Okay. So yesterday we have done कि जो perfect competition है, it means that market in which there is large number of buyers and sellers selling homogeneous product at a homogeneous price. The word homogeneous means same, similar, single. Any word can be used. Means there is only one product and there is only one price for that product. Then various features can be derived from this very definition. इसी में से hint ले ले करके we can take out the features. First feature was large number of buyers and sellers. That means the number means many buyers are there as well as many sellers are there, but their number is very unlimited. They cannot be counted. Unlimited in the sense कि भी many are there, it's very hard and very difficult to ascertain their total number. बहुत सारे हैं. अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि भी गिन ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, बट जरूरत से ज्यादा है. एंड इंडिविजुअल बायर एंड इंडिविजुअल सेलर cannot affect the whole of the market. If any single buyer does not go to market to buy the product, it will not at all harm the total market demand of that product. Similarly, if a single seller refuses to sell that product, then it is not at all going to affect the total supply in the market. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. No one can affect anyone. Then second was homogeneous price, homogeneous product. That means the commodity which is being sold and purchased that has perfect substitutes, means all units of that commodity wherever they are being sold and purchased, they are similar in all respects. Their color, their design, their features, size, anything, whatever can be the physical features of anything, they all are same. No change is found anywhere in any part of the market. एक जैसी चीज है, बिल्कुल सेम चीज है. So if there is a totally similar product, then obviously there should be homogeneous price. एक ही चीज है, सब जगह वही सेल हो रही है, तो उसका प्राइस भी एक ही होना चाहिए. There is no reason for having variation in price. क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है तो वेरिएशन किस बात की होगी, कोई हो ही नहीं सकती है. तो since product is same, homogeneous, so that is why price will also be same and homogeneous. Then we have done कि freedom of entry and exit is there, means any individual person, firm, producer या seller, he can enter the market. And when does he enter the market? He enters the market by getting attracted from the supernormal profits which are being earned by the existing sellers. जो भी existing sellers हैं, उनके profits को देख देख करके नए लोग भी उनसे बड़े affected होते हैं, influenced होते हैं. तो वो सोच सकते हैं कि इनको profit हो रहा है, तो why not I do this work? तो वो भी वो काम start कर सकते हैं. तो when they start the work, no one is going to stop them. ना तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ना कोई बाकी के प्रोड्यूसर्स, ना कोई और उसको रोक नहीं सकते. हर एक की अपनी मर्जी है. सिमिलरली इफ एनी सेलर और प्रोड्यूसर कम सेलर, ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, उसको बहुत नुकसान हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ही इज नॉट गेटिंग प्रॉफिट, और इवन कि उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो देन ही कैन डिसाइड टू लीव द मार्केट. दैट इज कॉल्ड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. So again, it is his own decision, his personal decision. No one can compel him कि भी नहीं जी नहीं, आपको लॉस हो रहा है तो भी आप मार्केट में बने रहो, नुकसान उठाओ, ऐसा कुछ नहीं. It is the total personal decision of any person to be there in the market, to continue the work or not to continue the work. तो exit भी अपनी मर्जी से, entry भी अपनी मर्जी से. ठीक है, there is no restriction. Then we have done कि भी there is perfect knowledge. Perfect knowledge का मतलब है कि all the buyers, they know fully well कि which product is being sold in the market. पता है सबको कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है. एंड सिमिलरली सेलर्स को पता है कि ये प्रोडक्ट है, इन ऑल द शॉप्स, इन ऑल द प्लेसेस ऑफ ए गिवन मार्केट सेम प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड. सबको सब कुछ पता है. सब कुछ इस करके पता है क्योंकि एक ही चीज है. अगर एक चीज ना होती, वेराइटी होती, फिर सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता है ना. जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में तो हमें सारी चीजों के बारे में ना तो नॉलेज होती है,
दुकानों पे, शॉप्स पे कितना सामान पड़ा होता है, हमें सबके बारे में एवरीथिंग वी डोंट नो। सिमिलरली वी डोंट नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, क्योंकि वेराइटी बहुत ज्यादा है और हम तो अपने मतलब की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वी जस्ट ट्राई टू बाय दैट वेरी प्रोडक्ट। तो ये जो परफेक्ट नॉलेज है दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज देयर इज सिंगल प्रोडक्ट। एक ही है, सब जगह वही सेल होना है, तो इस करके सबको एवरीथिंग इज नोन टू एवरीवन। दिस इज द मेन थिंग। देन वी वर डूइंग परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है यहाँ आप ना बेटर होगा इन प्लेस ऑफ सर्विसेज वर्ड उसको डिलीट करके यू शुड राइट गुड्स एंड फैक्टर्स। जहाँ सर्विसेज वर्ड लिखा है ना बुक में हेडिंग में, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज वर्ड की जगह बेटर वर्ड शुड बी फैक्टर्स। ठीक है, FACTORS। अब इसका मीनिंग क्या है कि मोबिलिटी मतलब फ्रीडम टू गो टू एनी प्लेस, कहीं से कोई कहीं चला जाए। आप फगवाड़ा से लुधियाना चले जाओ, लुधियाना से इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाओ, आपकी मोबिलिटी है, मतलब यू आर मोबाइल, यू कैन गो एनीवेयर, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो कमोडिटी है, सिंस ओनली वन कमोडिटी इज बीइंग एक्सचेंज, दैट इज बीइंग सोल्ड एंड परचेज्ड, तो वो कमोडिटी चाहे हम मार्केट के किसी भी कॉर्नर से खरीद लें, किसी भी कॉर्नर से बेच दें, किसी भी हिस्से से बेच दें, सेम कमोडिटी है। मतलब परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब हर एक जगह हमें वही चीज मिलेगी। दैट मीन्स दैट गुड कैन बी टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मार्केट और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द मार्केट, हार्डली मैटर्स। जैसे हम कहें फगवाड़ा की मार्केट है, आपने पेन खरीदना है, मान लो एक ही पेन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फगवाड़ा के पूरे एरिया में किसी भी जगह जाके आप पेन खरीदो, आपको वही पेन मिलेगा, है ना। चाहे मॉडल टाउन में खरीद लो, चाहे अपने स्कूल की टक शॉप से खरीद लो, चाहे कहीं से भी खरीदो, यू विल गेट द सेम पेन। तो दैट इज नोन एज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ दैट पेन, कि भी पेन सब जगह सेम ही मिलेगा। सिमिलरली ये तो हो गया गुड, गुड मतलब जो चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। सेकेंड होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने वाले कोई फैक्टर्स भी होते हैं। आपको अगर इफ यू रिमेम्बर स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था ना, देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर। These are called primary or basic factors. Without these factors, nothing can be produced. तो यहाँ पर यही बात है कि जो फैक्टर्स उस चीज को बना रहे हैं, which commodity which is being sold and purchased in perfect competition. पेन को बनाने वाले मान लो फैक्टर्स है, जो भी लेबर है, जो भी मशीनें, जो भी है, जो चीज भी लगी है पेन को बनाने के लिए, ऑल दोज आर फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स भी कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। मतलब पेन बनाने वाली जो फैक्ट्री है जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पेन, वो फगवाड़ा के मॉडल टाउन में भी हो सकता है, वो फगवाड़ा के बस स्टैंड के आसपास भी हो सकता है, फगवाड़ा की मार्केट के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में वो यूनिट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का। और उस पेन को बनाने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, दे आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस, एनी प्लेस मतलब एनी पार्ट ऑफ दैट मार्केट, किसी भी फैक्ट्री में जाके, मतलब है किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। चाहे किसी भी एक, मतलब मार्केट एक होनी चाहिए, उस मार्केट के किसी भी पार्ट में जाके काम कर सकते हैं। और सिंपल देखो, जैसे हम क्लास लगती है, प्रॉपर रूटीन स्कूल लगता है, तो स्कूल में क्लासरूम में बेंचेस पड़े होते हैं, तो कोई बच्चा किसी भी बेंच पे बैठ सकता है, चाहे आप फर्स्ट पे बैठो, सेकंड पे बैठो, लास्ट में बैठो, कहीं भी बैठो, मतलब यू आर फ्री टू सिट एनीवेयर इन द क्लासरूम, है ना। तो सेम थिंग इज हियर कि जो भी फैक्टर्स हैं उस चीज को बनाने वाले, वो किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, किसी भी मार्केट के किसी भी पार्ट में जहाँ वो बनाया जा रहा है प्रोडक्ट, एनीवेयर दे कैन गो एंड दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज। तो इसी चीज को कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो बिना बनाने वालों के नहीं बन सकती है, कोई जादू से, कोई मैजिक से कुछ नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। कोई मशीनें चाहिए, कोई लेबर चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो बिना बनाने वालों के अपने आप कोई चीज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि जो बनाने वाले फैक्टर्स हैं वो भी कहीं पर भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जो कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, वो भी कहीं पर भी बेचा जा सकता है, या बनाया जा सकता है, या खरीदा जा सकता है। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसका मतलब होता है नॉर्मली आम कोई भी हम मार्केट में सुनते हैं कि भाई जी, कोई किसी दुकान पे जाओ, कोई प्रोडक्ट कोई अगर महंगा देता है ना, तो अगर पूछें कि भाई आप क्यों ज्यादा प्राइस बता रहे हो, साथ वाली शॉप में तो इतना बता रहे हैं, तो वो अगला अपना कोई ना कोई बहाना बना देता है, अपना कोई रीजन दे देता है, नहीं जी हमें रेंट बहुत पड़ता है, हमें दूर से लानी पड़ती है, हमें बढ़िया मार्केट से दिल्ली से चीज लाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मतलब कुछ ना कुछ वो अगला कह देता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब है कि जो पूरी मार्केट में, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने वाले फैक्टर्स भी हर एक जगह आराम से अवेलेबल है,
तो कोई पर्सन, कोई सेलर इस बात का एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि मैं महंगी चीज देता हूँ, 2 रुपए महंगी देता हूँ क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। कोई ये एक्सक्यूज नहीं बना सकता, क्योंकि इस तरह की मार्केट में दिस इज अज्यूम्ड कि चीजों को लाने ले जाने के लिए, चीजों मतलब उनके बनाने वाले रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए कोई खर्च नहीं। अब इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, बट इन दिस मार्केट, एज आई सेड अर्लियर, कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये एक, दिस इज मोर केस ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये प्रैक्टिकली थोड़ा कम पाया जाता है। अब अपने आम जीवन में हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्ट का खर्च तो होता ही है। अगर कोई आदमी बिहार से कोई रॉ मटेरियल ला के पंजाब में कुछ बनाता है तो अगला अपना खर्चा डालेगा ही ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, उसने तो अपनी पॉकेट से खर्च किया है, तो सर्टेनली ही विल इंक्लूड दैट एक्सपेंडिचर इन द प्राइस। बट यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं है, तो इस करके प्राइस को ना बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है, और बायर्स किसी भी जगह से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज यूनिफॉर्म प्राइस। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस, अब ये पार्ट हमारा टोटली रिलेटेड टू, नाउ यू कैन सी द फिगर गिवन इन द पॉइंट। ये हमारा रेपिटेशन है, रेवेन्यू चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी वी हैव डन दिस। प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, यूनिफॉर्म मीन्स सेम। तो परफेक्ट कंपटीशन में सिंस देयर इज वन प्रोडक्ट वन प्राइस, तो दैट मीन्स देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं, जब भी कोई एक जैसी चीज होती है, सिमिलैरिटी होती है, तो दैट फॉर शोइंग दैट कैरेक्टरिस्टिक अगेन वी कैन यूज द वर्ड्स यूनिफॉर्म। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सभी बच्चे जितने राइट नाउ यू आर सिटिंग इन द मीटिंग, आप सुन रहे हो, तो आप सबके अंदर यूनिफॉर्मिटी क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी है कि यू ऑल आर अटेंडिंग द मीटिंग, है ना। पर्सनली आप सभी बैठ के मीटिंग को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये आपके अंदर यूनिफॉर्म फीचर है, सभी सुन रहे हो। ठीक। तो सेम थिंग इज हियर कि जो भी प्राइस है, 5 रुपीज 10 रुपीज जितना भी है वट एवर, वो सेम प्राइस है। तो अगर सेम प्राइस है तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउ यहाँ पर आप लिख लो एक साइड पे टेबल। टेबल ऑलरेडी वी हैव डन इन रेवेन्यू चैप्टर। मैं फिर से बोल देती हूँ, आप नोट कर लो। टेबल एक बना लीजिए छोटा सा साथ में। फर्स्ट कॉलम आउटपुट क्यू, सेकेंड कॉलम प्राइस और AR। ठीक है। फर्स्ट कॉलम आउटपुट के नीचे यू कैन राइट 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लो। देन AR। अब आप मान लो 10 रुपीज प्राइस है, तो फर्स्ट यूनिट का प्राइस 10 रुपीज, सेकेंड यूनिट के सामने भी 10 रुपीज, थर्ड यूनिट के सामने भी 10, सभी के सामने 10 10 10, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है। ठीक। अब आप इसकी हेल्प से जरा बना लीजिए TR, टोटल रेवेन्यू बना लीजिए। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला AR इंटू Q। तो फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50। फिर एक कॉलम बना लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू का। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो TR है वही हमारे लिए MR हो जाएगी। फर्स्ट 10, फिर सेकंड क्या होगी 20 माइनस 10 दैट इज 10, फिर 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30, फिर 50 माइनस 40, सभी में 10। अब ये रेपिटेशन है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में सिंस देयर इज सेम प्राइस, नो चेंजेस देयर, तो दैट इज व्हाई AR and MR they will be totally equal to each other. And if we show them diagrammatically, now as you can see in the book, the same line is there, AR is equal to MR, जो हम ये रेवेन्यू में पहले कर चुके हैं। ठीक है। दैट मीन्स सेम प्राइस है, वही MR है, उसी को AR कह दे, उसी बात को MR कह दे, बात एक ही है। ठीक है जी। बस दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 7 पॉइंट्स हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ सकता है, डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन आगे एनी 3 या 4 या 6 फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। तो जितने पूछे गए हैं उतने फीचर्स दे देने हैं। अगर नंबर नहीं बताया है तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने फीचर्स आपने दे देने हैं अपनी मर्जी से। ठीक। बट इसमें जो कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हिच यू ऑल शुड डू, you can tick mark first, second, third and last point. If you want to get better marks, so these are the better points. First, second, third and last one. Last one में you can draw the diagram also. See? बाकी के जो है ना नो ट्रांसपोर्ट ये वो थोड़े कंपैरेटिवली, मतलब अगर हम देखें तो वो इतनी बात नहीं है जितनी ये वाले मेन पॉइंट्स में। ठीक है जी। और जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड ये 7th, they can be asked separately also as a 3 या 4 marks question। जैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, गिव implications of
large number of buyers and sellers feature of perfect competition, या give implications of homogeneous product, या give implications of free entry exit, या implications of uniform price feature of, आगे लिखा होगा perfect competition, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में। implication का मतलब now we have to write all the possible meanings of this point, जो भी पूछा गया उसके पॉइंट्स बना के फिर आपने 3 और 4 पॉइंट्स में वो आपने देना, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो आगे है, बस हमारा सिलेबस में यहाँ तक ही है। उसके आगे जो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड परफेक्ट, यहाँ पर लिखो आप रीडिंग ओनली, दिस इज ओनली फॉर अवर नॉलेज सेक, याद नहीं करना है, देयर इज नो नीड टू लर्न, बट डिलीट का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना ही छोड़ दें, कोई फालतू चीज ना पढ़े। तो यहाँ पर यू कैन राइट रीडिंग ओनली, यहाँ से लेके टिल एंड ऑफ द चैप्टर ओनली रीडिंग, ठीक। तो अब मैं ब्रीफली आपको मेन सा बता देती हूँ, अदरवाइज लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है, उस पर टाइम नहीं लगाना आपने, बस इतने 7 पॉइंट तक ही आपने करना, बट स्टिल वी शुड नो। अब फर्क क्या है आगे दिया, एक होता है प्योर कंपटीशन, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका मीनिंग ये है, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, यहाँ पर आप चेक करो, मैंने लिख भी दिया है कि अगर किसी मार्केट में ये जितने आउट ऑफ 7 फीचर्स हैं, अगर आउट ऑफ दो 7 फीचर्स if in any market only 3 features are found, कौन से, large number of firms मतलब sellers, then homogeneous price and then free entry exit of firms। अगर ये हमारे फीचर्स होते हैं किसी भी मार्केट में, सिर्फ ये 3 फीचर्स हैं, then that market can be known as this pure competition। मतलब प्योर होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, फ्री एंट्री एग्जिट, सेम प्राइस होना चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स या फर्म्स होना चाहिए, तो उसको कह देते हैं प्योर कंपटीशन। अगर इन एडिशन टू दीज 3 और भी फीचर्स हैं, और कौन से, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, बाकी के सारे जो भी हैं, अगर एक्स्ट्रा भी हैं, एडिशनल फीचर्स आर आल्सो देयर, देन द सेम टर्म विल बी नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। तभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम क्या पढ़ा, परफेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे के बारे में वी हैव स्टडीड, ठीक। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि अगर 3 फीचर्स हैं, मतलब प्योर कंपटीशन होने के लिए ओनली 3 फीचर्स आर रिक्वायर्ड, ये वाले, और अगर एडिशनल फीचर्स आर आल्सो बीइंग देयर, दे आर बीइंग स्टडीड, तो देन द सेम टर्म इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। बट नाउ व्हाट डू वी सी इन अवर डेली लाइफ, इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, होता क्या है, अभी जितने हमने ये पढ़े परफेक्ट के बारे में, तो इन रियलिटी दिस टाइप ऑफ मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन टोटलिटी। आप देखो जब हम बाजार जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज थोड़ी होती है, कितनी चीजें हैं पूरे मार्केट में, कितनी तरह की चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इतनी अनगिनत चीजें हैं, तो इसका मतलब रियल लाइफ में ये वाला फीचर तो बिल्कुल नहीं बनता है कि देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, ये तो बात हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि वैरायटी है तो ये वाला फीचर भी नहीं बनता है कि दे हैव ओनली वन प्राइस, क्योंकि एक चीज नहीं है तो सब चीजों का प्राइस भी एक जैसा नहीं होगा। आप एक स्टेपलर की पिन्स का पैकेट लेते हो और वो भी उसी मार्केट में बनता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और एक शिप के अंदर जो इंजन लगते हैं या ट्रेन्स में या प्लेन्स में जो भी सामान यूज होता है वो सामान भी बनते हैं। तो एक स्टेपलर की पिन मान लो 5 रुपए का पैकेट आता है, तो कोई 5 करोड़ की भी चीज है, 5 लाख की भी है, 5 अरब की भी है, कितनी चीजें हैं, तो इसका मतलब एक सेम प्राइस भी नहीं हो सकता, ना सेम चीज होगी ना सेम प्राइस होगा। तो ये एक मेन बात है कि रियल लाइफ में दिस परफेक्ट कंपटीशन कॉन्सेप्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट, रादर इट इज बेसिकली ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। आइडियलिस्टिक होता है कि मान के चलते हैं अपने दिमाग में, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऐसी मार्केट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आइडियलिस्टिक क्यों सोचते हैं, तो आइडियलिस्टिक का मतलब होता है कई बार, एक मैं वैसे एग्जांपल बता रही हूँ, कई बार हम फिल्म स्टार्स को देख के या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को देखते हैं ना, ये देख के कहते हैं ये बड़ी आइडियलिस्टिक मॉडल है हमारे लिए। अब रियल लाइफ में सारे लोग उस तरह के नहीं होते, बट वी ट्राई टू बिकम लाइक देम, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे ये है कि मार्केट होती तो नहीं है, बट फिर हम ये देख लेते हैं कि इस मार्केट से वेरिएशन में क्या चीजें हैं, इसके ऑपोजिट क्या चीजें हैं, या इससे दूर जाती हुई क्या चीजें हैं विच रियली एग्जिस्ट, तो वो एक्चुअल लाइफ में होती हैं। उनको सबको क्या दिया जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसमें फिर ये सारे आ जाते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। एक और होती है, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैं बता देती हूँ। अब ये सारे जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की लिटिल बिट डिटेल इज रिक्वायर्ड दैट वी हैव डन इन चैप्टर रेवेन्यू।
उतनी आपको करनी पड़ेगी जो उस लेसन के अकॉर्डिंग है। ठीक, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं करना है हमने, वो आप सिर्फ पढ़ लेना। मैं आपको मेन सा बता देती हूँ। अब मोनोपोली हमें पहले ही पता है, मोनोपोली होता है दैट मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, सिंगल सेलर है, एंड द प्रोडक्ट विच ही इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, दैट प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई है ही नहीं उसके साथ का, उससे मिलता जुलता दूर दराज का भी उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो दैट इज वाई पीपल कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू गो टू दैट मोनोपोलिस्ट पर्सन, क्योंकि और कोई है ही नहीं। पूरे फगवाड़ा में अपना ही स्कूल हो, एक ही स्कूल है, तो बच्चे कहीं और जाना भी चाहे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि और कोई स्कूल ही नहीं है, यहीं आना पड़ेगा। सेम थिंग इज देयर, मोनोपोलिस्ट क्योंकि एक ही पर्सन है सेल करने वाला, तो लोग कहीं और जा ही नहीं सकते, उसको उन्हीं के पास मतलब लोगों को उसी के पास आना पड़ेगा। फिर जो मोनोपोलिस्ट है ये एक्सप्लॉइट्स दिस सिचुएशन। ये तो एक सिंपल सी बड़ी रियलिस्टिक बात है कि जिस आदमी के पास कंट्रोल होता है वो अपनी पूरा अपना दबदबा चलाता है ना, अपना पूरा दिखाता है अपना पूरा जोर, क्योंकि उसको पता है मैं ही अकेला हूँ। क्या बोलते हैं वो, सिंग इज किंग, है ना, बादशाह मैं ही हूँ पूरी मार्केट का, तो जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो वो भी ऐसे ही करता है। तो क्योंकि अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि द प्रोडक्ट विच इज बीइंग मेड बाय हिम वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। क्या वो लोगों की नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है, या लोगों के कंफर्ट वाला प्रोडक्ट है, या लोगों के लिए वो एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है। अगर तो वो लग्जूरियस प्रोडक्ट है या कंफर्ट वाला है, फिर मोनोपोलिस्ट इतना अपना कब्जा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि लोग डिमांड नहीं करेंगे अगर वो ज्यादा प्राइस रखेगा। बट इन केस दैट प्रोडक्ट इफ दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसिटी प्रोडक्ट, तो फिर लोगों को लेना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन है, मान लो हम लोग कहीं जा रहे हो, आप या मैं कोई भी जा रहे हो, कहीं पर कोई पानी की टैप नहीं है, कोई पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और एक ही दुकान है पूरे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में, एक ही स्टॉल बना हुआ है पानी की बॉटल्स का। तो अब वो आदमी पूरा देखेगा, अब हम सफर कर रहे हैं, प्यास तो लगती है, पानी है नहीं, घर वाला पानी भी खत्म हो गया है ना, और कोई है ही नहीं। अब वो आदमी एक सिंपल पानी की बोतल चाहे 20 रुपीज में बेच दे, चाहे वो 25 में बेच दे, चाहे 30 में, जब हमें प्यास लगी है तो हमें लेनी ही पड़ेगी, है ना। मरेंगे तो नहीं ना 25 रुपए बचाने के लिए कि मर जाओ पानी नहीं पीना, हम ले लेते हैं, मजबूरी है ना। तो सेम थिंग इज देयर, अब हमारी उसी मजबूरी का जो फायदा उठाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो मोनोपोलिस्ट इस बात का फायदा उठाता है। बट अगर कोई ऐसी चीज हो जो इतनी ज्यादा जरूरत वाली नहीं है, फिर नहीं हम इतने पैसे खर्च करते। हम अगर वो कहे कि भी कोई टी है या कॉफी है या कुछ और है, हम कहते कोई नहीं, चाय के बिना भी रह लेते हैं, घर जाके पी लेंगे, तो हम रोक देते हैं, अपनी डिमांड को रोक लेते हैं। तो उस केस में वो मतलब एक्सप्लॉयटेशन इतना नहीं कर सकता जितना कि एक नेसेसिटी के केस में कर सकता है। ठीक, उसके बाद है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, जो मोनोपोली है वो दो तीन तरीके से दैट कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो। ये पढ़ने याद नहीं करने, मतलब आपके समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है और नया टॉपिक हमने करना नहीं है, तो वी कैन यूज दिस टाइम। तो अब जो मोनोपोली है दैट कैन बी क्रिएटेड इन 2-3 वेज। अब वो कौन से हैं? एक होता है बाय इम्पोजिंग लीगल बैरियर्स, एक होती है नेचुरल ज्योग्राफिकल रीजंस के करके, और एक होती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे आपको थोड़ा बहुत तो ज्योग्राफी आपने पढ़ी है 10th तक, तो पूरे वर्ल्ड का आप देखो तो उसमें मैक्सिमम जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम कच्चा तेल जो होता है, क्रूड ऑयल, वो सबसे ज्यादा तेल दुनिया का कहाँ पे पाया जाता है? इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जिनको बोलते हैं ना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये वाले जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये दीज आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट के कंट्रीज। तो मैक्सिमम वर्ल्ड के जो ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर फाउंड इन दिस पार्ट। ठीक, अब आप इमेजिन करो कि मान लो इस पार्ट में वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, बट एक मिनट के लिए हम अपनी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सोचे, मान लो एक ही कंट्री है सऊदी अरेबिया, उसी के पास सारा तेल है, पूरा पेट्रोलियम के जो भी रिजर्व्स हैं उसी की जमीन के नीचे हैं, कुदरती तौर पे वही मिलता है। तो अब सऊदी अरेबिया की क्या हो जाएगी उस केस में? ज्योग्राफिकल मोनोपोली। ज्योग्राफिकल मतलब उस एरिया के अलावा दुनिया में है ही नहीं, तो अब वो उस देश की मर्जी, वो जितना मर्जी महंगा करके बेचे, क्योंकि पेट्रोलियम ऐसी चीज है कि बाकियों को भी चाहिए, सबको आजकल के टाइम में उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो सभी लोगों को, सभी कंट्रीज को चाहिए। तो इन दैट केस सऊदी अरेबिया विल बी एंजॉयिंग द ज्योग्राफिकल मोनोपोली ओवर दैट, ओवर दोज रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल। तो वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। ठीक है, एक इसका मतलब कुदरती तरीके से कोई चीज कहीं पर मिलती है और वर्ल्ड के किसी पार्ट में ना मिले,
तो नेचुरल या ज्योग्राफिकल मोनोपोली उसको बोल सकते हैं। सेकंड होती है थ्रू लीगल बैरियर्स। लीगल बैरियर होता है कि लीगल मतलब कानूनी और बैरियर मतलब हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स। जैसे हम कहीं रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक वालों ने जहाँ ज्यादा रश होता है, कोई चौक आता है, कोई राउंड अबाउट होता है, तो वहाँ या कोई ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड होती है तो वहाँ थोड़े से बैरियर से लगा देते हैं ना, बैरिकेडिंग कर देते हैं कि स्पीड से आने वाली जो व्हीकल्स हैं थोड़े से स्लो हो जाए, तो उसको बोल देते हैं बैरियर या बैरिकेडिंग। तो बैरिकेडिंग सॉरी। तो ऐसे ही यहाँ पर है लीगल बैरियर्स का मतलब है कि व्हेन गवर्नमेंट वांट्स ओनली एनी वन कंपनी टू सेल दैट प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ही चाहती है कि एक ही कंपनी उसको बेचे, बाकी ना बेचे। तो उस केस में भी मोनोपोली के लिए गवर्नमेंट उस कंपनी को राइट दे सकती है, उसको लाइसेंस दे सकती है कि हाँ जी भी आपने ही ये काम करना है और नहीं कोई करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, जैसे अपने स्कूल की कैंटीन है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, ठीक है। अब अपने स्कूल की कैंटीन जो है, ओनली वो कैंटीन पर्सन हैज बीन गिवन द राइट टू सेल ईटेबल्स इन द स्कूल। this permission has been granted to him by the school authorities, है ना। उसको ही लाइसेंस दिया है एक तरह से। लाइसेंस का मतलब परमिशन, कि भाई बस आपने ही बेचना है। ऐसा तो नहीं कहा स्कूल वालों ने कि दो चार और कैंटीन वाले भी वहां ले आए, उनको नहीं परमिशन दी है। इसका मतलब अब उस पर्सन की क्या हो जाएगी, वहां पे मोनोपोली है एक तरह से, क्योंकि सब बच्चों ने उसी के पास जाना है। ठीक। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट किसी को परमिशन देती है, लाइसेंस देती है कि ठीक है जी ये चीज है, एक ही प्रोडक्ट है और कोई नहीं बनाएगा, आप ही बनाओगे, तो इन दैट केस दैट मोनोपोली विल बी कॉल्ड लीगल बैरियर। कि भाई जानबूझ के ये क्रिएट किया गया, अदर्स आर बीइंग डिनाइड दैट परमिशन, और किसी को परमिशन ही नहीं दे रहे, तो ये भी एक हो सकता है। और एक होता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी, मोनोपोली वाली कंपनी या फर्म बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करती है। लार्ज स्केल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, इतना मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा हायर स्केल के ऊपर काम वहां चल रहा है। तो उस केस में वो कंपनी की उस काम को करने में प्रोफिशिएंसी हो जाती है, बड़ी एक्सपर्टनेस आ जाती है, एक्सपर्टीज हो जाती है, क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना तामझाम है, इतना अरेंजमेंट है, इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ किया हुआ है। और तो उसके सामने कोई आप या मैं, कोई छोटा मोटा आदमी जाके कहे कि हम भी इसको चीज को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कंपनी की इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी कंपनी है कि एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर तो काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो मतलब वो कर ही नहीं सकता, तो डर के मारे करेगा भी नहीं। तो उस केस में क्या होगा, वही एक जो कंपनी है वही अपने काम को एक्सपेंड करती रहती है, वही अपना बढ़ाती रहती है काम धंधा, और कोई कर ही नहीं पाता है या कर सकता ही नहीं है ड्यू टू दैट सिचुएशन। तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली लार्ज स्केल होने के करके भी उस कंपनी की कुदरती तौर पे, कुदरती तो नहीं कहेंगे, है तो ये ह्यूमन एफर्ट है, बट उसने एफर्ट किया है ना, एक्सपेंशन करने में अपना पूरी मेहनत लगाई है, तो भी उसकी एक तरह से मोनोपोली बन जाती है। तो ऐसे मतलब कई कई रीजंस हो सकते हैं मोनोपोली मार्केट के होने के। ठीक है। तो अब ये मोनोपोली भी हर एक चीज के केस में नहीं होती, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये भी बहुत कम होती है। ऐसा भी कोई दुनिया में प्रोडक्ट नहीं है कि उसको एक ही कंट्री बनाता हो या एक ही कंपनी बनाती हो, ये भी बड़ा रेयर केस है, कोई एक आधा ही होगा, अदरवाइज कोई ऐसा है नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बस ये इसी का यही है कि बाकी हमने वो रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो एक रियल लाइफ सिचुएशन है। व्हाट डू वी सी अराउंड अस, कई तरह के कॉम्पिटिशनल प्रोडक्ट्स हम देखते हैं। टीवी कई तरह के, वाटर बॉटल्स हैं वो कई तरह के डिजाइन की, सोप है वो कई डिजाइन के, कोई और खाने पीने वाली चीज है वो वैरायटी मिल जाती है, कपड़े हैं वो वैरायटी मिल जाती है। वैरायटी इज देयर। तो वैरायटी का मतलब देयर इज दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। काम एक ही है, अपनी कपड़े पहनते हैं हम लोग, टॉप पहन ले, शर्ट पहन ले, और कोई सूट बनवा ले, कुछ भी बना ले, कोई भी कंपटीशन है सब कपड़ों के बीच में, है ना, ड्रेसेस के बीच में, जो पसंद आए हम ले लेते हैं। तो मतलब ये है कि रियल लाइफ में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, एंड देयर इज डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस इन द प्राइसेस आल्सो। थोड़ा बहुत, एक बहुत ज्यादा तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत चेंज होता है। एक दुकान से पूछो वो कुछ और बताता है, दूसरी वाला 100-50 रुपये आगे पीछे बता देता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। और जिस प्रोडक्ट को, और वो डिफरेंस भी क्यों होता है, वो डिफरेंस सिर्फ उस एक्सटेंट तक होता है जितनी उस प्रोडक्ट के मामले में उस पर्टिकुलर कंपनी की अपनी यूनिकनेस होती है, अपना कोई खास बात होती है, उतना वो इसका मतलब उस उतने लेवल तक उसका अपना कंट्रोल है। बाकी के इंग्रेडिएंट तो सेम ही है,
बट अगर कोई स्पेशल कोई डिजाइन डाला है, कुछ स्पेशल कुछ भी खास किया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसका मतलब उतने एक्सटेंट तक उसकी अपनी मोनोपोली है, उसका अपना कब्जा है, उसका अपना रोल है, अपनी कंट्रीब्यूशन है। तो जितने परसेंट तक उसका अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, उतना ही हम कह देते हैं कि उसकी मोनोपोली है, उतना ही वो प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई दुकान से 100 रुपए की चीज है, दूसरी में जाए वो कहता है जी 120 की, तो हम पूछते हैं कि है तो ये वैसी है, तो अगला कहता है अच्छा फिर आप वहीं से जाके ले लो। तो 20 हम पूछें कि आप क्यों 20 रुपीज ज्यादा बता रहे हो, फिर वो अगली वो अपनी चीज की तारीफ बताते हैं कि मेरी चीज में ये एडिशनल पॉइंट है, इस करके मैं ये 20 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। तो वो जो एडिशनलनेस जिसको बोल सकते हैं, खास बात बोल सकते हैं, वो उतने हद तक उसकी अपनी मोनोपोली होती है, तो उतना वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है प्राइस को। ठीक है, लास्ट होता है एक मार्केट फॉर्म होती है डिओपोली, DUOPOLY। डिओपोली होता है दैट मार्केट इन विच ओनली 2 सेलर्स आते हैं। जैसे मोनोपोली में सिंगल सेलर, तो ऐसे डिओपोली होती है जिसमें ओनली 2 सेलर्स आर देयर इन द टोटल मार्केट। 2 जने ही है, बस 2 जनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, तो वो डिओपोली होता है। अब ये भी थोड़ी कमी होती है ओरिजिनल लाइफ में। उसके बाद है लास्ट वन जो मेन है, वो ओलिगोपली। ओलिगोपली का मतलब होता है ऐसी मार्केट जिसमें 2 से ज्यादा सेलर्स होते हैं बट अनलिमिटेड नहीं होते, फ्यू सेलर्स आर देयर। जैसे मतलब हम बोल सकते हैं 8-10 सेलर्स हो सकते हैं, 10-12 हो सकते हैं, 15 तक हो सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड नहीं है कि हजारों लाखों एक दूसरे से कंपटीशन करें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम आराम से समझ सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, बाइक, एक्टिवा, स्कूटर, ये बनाने वाली कंपनियां हैं। अब आप देखो, आपको 5, 7, 8, 10 तो नाम आपको ध्यान में आ जाएंगे, बट ये कोई ऐसी कंपनियां नहीं है इंडिया में कि बहुत जो कई 100 कंपनियां हैं या कई 200 है या 500, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा 8-10 कंपनियां होंगी जो बनाती हैं, है ना। ऐसे ही कार बनाने वाली, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 7-8 ही होंगी जो मेन मेन है, जो चलती हैं, सारे लोग खरीदते हैं। 7-8-10 होंगी, बड़ी हद, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो ये कंपनियां हैं, इसका मतलब कम से कम 2 से ज्यादा। और बाकी कोई ऐसे फिक्स रूल भी नहीं है कि 15 से कम है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो इस करके वर्ड हम यूज कर लेते हैं ए फ्यू, पे कुछ है। अब वो कुछ 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मतलब अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक में ना बहुत बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं, गिनती की कंपनियां होती हैं। तो अब वो जो गिनती की कंपनियां हैं, कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो दैट कैन बी होमोजीनियस, दैट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। अब वो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमेंट है। सीमेंट, अब देखा जाए तो सीमेंट किसी भी कंपनी का सीमेंट बैग खरीद लो, सीमेंट तो सीमेंट ही है ना। जैसे वो टीवी पे कौन सी ऐड आती है, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, मुझे 3 ही नाम याद आ रहे हैं, है ना। तो ये 3 कंपनियां, एक कोई और भी होगी, तो ये 3-4 कंपनियां है ना, इन्हीं का सीमेंट बिकता है। तो मतलब वो कुछ कंपनियां हो सकती है और जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो सेम ही है। सीमेंट का कौन सा कलर कोई अलग हो जा रहा है, सीमेंट वही रहना है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट बना के वो बेच रहे हैं। ऑन दी अदर साइड थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी हो सकता है। जैसे कार बनाने वाली कंपनीज है, तो उनके अपने अपने डिजाइन होते हैं। है तो 4 व्हीलर ही है, उसके व्हील तो चार, मतलब टायर तो 4 ही होने हैं, बैठने का भी वही अरेंजमेंट है, बट थोड़ा सा उसकी डिजाइनिंग, उसका कलर, उसके फीचर्स थोड़े बहुत आगे पीछे कर दिए जाते हैं, तो वो हो जाता है हेट्रोजीनस प्रोडक्ट। मतलब वो ये जो ऑलिगोपोली वाली फर्म्स हैं, वो एक जैसा भी प्रोडक्ट बना के बेच सकती हैं और थोड़ा सा एक दूसरे से लिटिल बिट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं। और इनमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि थोड़ी कंपनियां सारे अपना अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो देर इज टफ कंपटीशन in this type of market, and huge advertisement cost is used in this market. एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा होता है। आप टीवी पे जितनी भी एड्स देखते हो, उसमें से जो ऐसी कार वाली कंपनियां या कुछ लिमिटेड जो ब्रांड्स वाली कंपनी, वो बड़ा बहुत बहुत पैसा खर्च करती हैं अपनी चीज को प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये आपने याद नहीं करना है, आपको आएगा पेपर में सिर्फ ये वाला परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट की दिस चैप्टर ही फिनिश हो गया। अब बाकी का हम आफ्टर एग्जाम्स करेंगे। अब कल के लिए, कल टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट रिवीजन वर्क। तो कल आपने तैयार करके रखना है चैप्टर इंडेक्स नंबर्स। ठीक है जी, अब रिवर्स से शुरू कर लेते हैं। 13 14 तक हमने रिवीजन करनी है, तो इंडेक्स नंबर का आपने पूरी तैयारी करके रखनी है। आफ्टर रिवीजन
फिर आपका गूगल फॉर्म का टेस्ट भी होना है। कर लेंगे? ठीक है, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने PT2 वाले लेसन भी रिवाइज करने हैं प्लस PT1 वाले भी करने हैं। तो एटलीस्ट एक दिन में कम से कम एक चैप्टर हमारा करना कंपल्सरी है, अदरवाइज हमारा